Good morning, students. Welcome back. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे थे और हम लोगों ने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी देखा था. वी हैव आल्सो सीन कि चेंजेस कैसे होगा अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2O2 और D2O यूज़ करें या फिर सिमिलरली BD3 यूज़ करें इंस्टेड ऑफ BH3. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक addition of bromine and alkene. So normally this takes place in non-polar solvent like CCl4. ऐसा एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, पोलर सॉल्वेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होता है. सो नॉर्मली अगर हम ब्रोमीन और CCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एल्कीन की, तो इसमें ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा एंड दैट एडिशन विल टेक प्लेस इन सच अ वे दैट first of all Br2 is going to attack at the electrons of these pi bonds. ठीक है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होगा. उस अट्रैक्शन की वजह से ब्रोमीन और ब्रोमीन में एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. सो दिस इज समथिंग विच इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है. सो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तीन तरीके के इंटरेक्शन होते हैं हमारे पास. आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, आयन एंड देन फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन वी हैव इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, and then we have induced dipole interaction. So this is something like induced dipole attraction. So there is no dipole in the reactant as well as there is no dipole initially for bromine, but in the presence of electrons, these bonds are getting polarized, and because of this polarization an addition is taking place. So this bromine, delta positive bromine, will be attracted towards the electrons of the alkene, and it will form a bromomium cation. Okay, it's called as bromomium cation, which is Br plus, and after the addition both bromines will be attached to these double bonds. Okay, so this takes place something sometimes in such a way that this bromine is going to attack at the opposite direction from this addition. अगर bromine यहाँ नीचे से लग रहा होगा Br2, तो ये जो डेल्टा नेगेटिव वाला ब्रोमीन है, ये डेल्टा नेगेटिव वाला ब्रोमीन आकर के यहाँ अटैक कर देगा. ठीक है. So the as I said, the use of the CCl4 is it is providing or it is acting like a solvent, and it is a non-polar solvent. So if there will be a polar solvent, so instead of attacking this Br minus, the solvent will attack at this position. Okay, and that attack will be a Markovnikov addition. राइट. सो दिस इज एन एंटी एडिशन ऑफ द ब्रोमीन. एज आई सेड कि अगर नीचे से ब्रोमीन अटैक कर रहा होगा तो जो दूसरा ब्रोमीन है वो दूसरा ब्रोमीन आकर के डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करेगा. सो एक ब्रोमीन जो है आपका नीचे की साइड जुड़ेगा और एक ब्रोमीन जो है आपके ऊपर की साइड जुड़ेगा. एंड हेयर Br2 इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ये काम जो है हम लोग Cl2 के साथ भी करा सकते हैं, फिर HOCl के साथ भी ऐसे करा सकते थे. ठीक है, depending on the different reagents that we are taking. So यहाँ पे जो है there is no formation of carbocation, but the properties of the intermediate is somewhat like carbocation, but no actual carbocation is generated. That's why there would be no rearrangement in the compound, okay, or in the product. CCl4 is a non-polar solvent, and if polar solvent is used such as ROH, then Markovnikov's addition of Br and RO minus will take place. ठीक है. सो अगर हम जैसे ये एल्कीन यूज कर रहे हैं एंड इसमें हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो दैट ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस एज इट इज, एज सिंपल एज दैट. दिस इज एंटी एडिशन. ठीक है. And if we are using solvent like ROH, RO minus will be attached at such carbon in which there will be a minimum number of hydrogens. That will be the Markovnikov addition. Alright. So if we see कि major products क्या क्या हो सकता है. हाँ बोलो. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ
दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हमने जो बात करी ना इनिशियली, देयर विल बी नो पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, दैट पोलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द induced dipole interaction. Okay, there was no actual dipole, but in the presence of a alkene, bromine will be polarized. ठीक है, so this is essentially an example of an induced dipole interaction. All right. So जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन का, राइट? तो जैसे मान लो ये एल्कीन है, इसका प्रोडक्ट बना के देखिए क्या आएगा। Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें देखना क्या है, वी आर जस्ट एडिंग ब्रोमीन इन द डबल बॉन्ड, और ये ब्रोमीन कैसे ऐड होगा, एंटी एडिशन होगा इसका, एक ऊपर की साइड लगेगा और एक नीचे की साइड आपका ब्रोमीन लगेगा। सो सिमिलरली अगर हम लोग ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट बना करके देखिए क्या आएगा, ब्रोमीन लग जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे, राइट? एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। सो इफ द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, we have to see कि how does it is going to perform, right? So अगर हम लोग instead of CCl4 we are using CS3OH, then प्रोडक्ट आप इसका बना के देखिए क्या बना। CH3O लग जाएगा, राइट? है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सी में देखिए, सी में क्या, फोर्थ पॉइंट, ये लास्ट वाला ना, RO माइनस वाला। इसमें अगर इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो पोलर सॉल्वेंट आकर के जो है पहले रिएक्शन शो करेगा। सो इफ वी आर यूजिंग RO माइनस या फिर CH3OH, तो ऐसा अगर हम लोग ROH यूज करते हैं तो ROH का अटैक होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका अटैक नहीं होगा, राइट? द रीजन फॉर दैट इज कि सॉल्वेंट जो है हम लोग एक्सेस में लेते हैं, सो वी हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन Br2। सो Br, इस Br के अटैक करने से पहले ही जो है सॉल्वेंट का अटैक हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे ब्रोमीन और RO माइनस का जो है वो अटैक हो रहा है, एंड दिस एडिशन इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको कि RO जो है आपका एक मार्कोनिकॉफ एडिशन में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द एडिशन इज टेकिंग प्लेस फॉर ब्रोमीन। ठीक है, अगर हम सिर्फ CCl4 ले रहे हैं तो ब्रोमीन कैसे ऐड हो रहा है, एक ब्रोमीन ऊपर से अटैक हो रहा है और एक ब्रोमीन का जो अटैक है वो नीचे से अटैक हो रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे जो ब्रोमीन है आपका, वो ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी काम कर रहा है और एज एन न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है। सो इलेक्ट्रोफाइल इज Br2, ठीक है, Br2 इज इलेक्ट्रोफाइल, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे वो उसी Br2 का Br माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, राइट? लेकिन अब सॉल्वेंट जैसे हम लोगों ने यूज किया तो ये OR माइनस यहाँ लग जाएगा, राइट? जैसे कि सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, फाइन। तो सी का देखिए सॉल्व करके, सी का क्या आना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। एक वेज होगा और एक डैश होगा, राइट, ब्रोमीन का। ठीक है, सी सी समझ में आया? बोलो। ठीक, नेक्स्ट देखिए डी, देखिए डी में क्या बनना चाहिए।
सी बिल्कुल। तो आपका ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, वेज डैश प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकता है। ब्रोमीन आपका जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ब्रोमीन जो पीछे से भी, नीचे से भी अटैक कर सकता है या पीछे से भी अटैक कर सकता है। एंड सिमिलरली वो CS3 का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। आई गेस कि यहाँ पे OCH3 यहाँ होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे OCH3 होना चाहिए और यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कायरल सेंटर है, ठीक है। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? ये मॉलिक्यूल नहीं ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, है तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ये भी बन सकता है और इसका मिरर इमेज भी बन सकता है। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो क्लियरली एक इनैंशियोमर बन सकता है इसमें। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर ना ना मेजर माइनर तो नहीं बोल सकते ना, अब दोनों दोनों ही 50% में बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए ई Br2 और H2O यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 3 डिग्री पे OH हो जाएगा और 1 डिग्री पे आपका ये लग जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जो है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन, जिस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। सो ये ऑक्सीजन जो है आकर के इस कार्बन पे अटैक कर देगा इन बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग बनेगा जिसमें एक ऑक्सीजन भी है और इसको जो है हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिखे तो दैट इज इपॉक्साइड। सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ अ कंपाउंड, इट इज आल्सो इपॉक्साइड। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें इपॉक्साइड्स भी आएगा, उस टाइम में हम लोग बात करेंगे कैसे जनरेट होता है। दिस इज जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऐसे कॉन्जुगेटेड डाइन्स में अगर हम लोगों ने ब्रोमिनेशन करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 and the temperature is kept 0 degree, so then it will be a simple addition of bromine. Alright, so normally ये रिएक्शन जो है आपका प्रोडक्ट्स बना सकता है और ये प्रोडक्ट्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन आकर के अटैच हो गया। फाइन। और अगर हम लोग इसी रिएक्शन में टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो टेम्परेचर हाई करने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, देखो। ऑलराइट, सो टेम्परेचर पे भी यहाँ पे प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट आया है दिस इज नोन एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सो हीटिंग होने से क्या हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी है वो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिफरेंट है इन इन बोथ दीज रिएक्शंस। सो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, प्रोडक्ट कौन ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट और सेकंड में, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, F और G का प्रोडक्ट? G का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है F के प्रोडक्ट में और G के प्रोडक्ट में आपके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सो दिस एक्चुअली हैपेंस फॉर such compounds which can produce more than one product at a different temperatures, ठीक है। सो वी कॉल इट एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। सो आपका जो प्रोडक्ट आया है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट,
ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। और इसी को हम लोग अगर प्रोडक्ट देखें, जब हम लोग हीट कर रहे हैं ठीक है, तो जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, किस तरीके से बना होगा ये प्रोडक्ट, कैसे ये रीअरेंज होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल नहीं है, या फिर यूं कहें जैसे Cl2 Br2, राइट, उसको हीट कर देते हैं हम लोग एल्केन्स में, तो हमें जो है फ्री रेडिकल बनता था। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और उसी रेजोनेंस की वजह से जो है आपके प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, so clearly this is a free radical mechanism, right? So in KCP and TCP, this is first one is KCP, which is kinetically controlled product, and this is TCP, which is thermodynamically controlled product. अगर हम इसके एनर्जी ग्राफ को देखें कि इसका एनर्जी ग्राफ कैसे एग्जिस्ट करेगा, सो इन दोनों के एनर्जी ग्राफ्स जो हैं थोड़े डिफरेंट होंगे। सो इफ वी हैव प्रोडक्ट एनर्जी, सॉरी रिएक्टेंट एनर्जी और एक प्रोडक्ट एनर्जी ऐसा है, तो ये कर्व कुछ ऐसा लाई करेगा, राइट, इस तरीके से वी आर प्लॉटिंग एनर्जी वर्सेस रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल्स में पढ़ा होगा, अभी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स किया नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। और एक दूसरा रिएक्शन पाथ आया है जो कि इससे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो ये जो ब्लू वाला है दिस इज TCP, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है डायग्राम, लेट मी क्लियर इट। TCP ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है दैट इज TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये जो ब्लैक वाला है दैट इज KCP। ठीक है, so normally this happens that the activation energy of the TCP is more than the activation energy of the KCP. ठीक है, and also the stability of the product is different in both KCP and TCP. So generally what happens is that we can say कि activation energy EA, ठीक है, so this activation energy of TCP is more than activation energy of KCP. But if you see the stability of the product, then the stability of the product will be also similar stability of product. ठीक है, तो KCP और TCP का भी यही ऑर्डर आएगा कि TCP is more stable than KCP। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे जो है थोड़ा हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं।
ठीक है, तो इसी कॉन्जुगेटेड डाइन में मैं सपोज कि HBr के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं और ये टेम्परेचर हमने लिया है कुछ 0 डिग्री से, ठीक है। सो हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो प्रोडक्ट एज इट इज यही आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और अगर हम लोगों ने हाई टेम्परेचर पे ये काम किया है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो ये है, ठीक है। So if we started numbering this chain, so this is 1 2 3 4, this is 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो यू शुड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, जो HBr का हाइड्रोजन था, राइट। तो ये जो एडिशन हुआ है, दैट एडिशन इज समटाइम्स टर्म्ड एज 1-2 addition, and the TCP product is sometimes called as 1-4 addition. And this is TCP, kinetically controlled product, and this is thermodynamically controlled product. KCP का अगर हम लोग इंटरमीडिएट देखें कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, सो KCP का इंटरमीडिएट जो होगा आपका वो ये होगा, ठीक है। एंड TCP का जो प्रोडक्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा, वो इंटरमीडिएट आपका ये होगा, ठीक है। तो अगर हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेट्स से दिस, लेट्स नंबर इट एज 1 एंड लेट्स नंबर इट एज 2। तो अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करें कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, टू वाला ज्यादा स्टेबल है या 1 वाला ज्यादा स्टेबल है? 1 वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कार्बोकेटायन है वो सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन है और उसमें रेजोनेंस तो है ही, ठीक है। सेकंड वाले में 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और उसमें रेजोनेंस है, राइट। सो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो 1 इज मोर स्टेबल, 1 is more stable than 2. यही चीज अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए बोल दे तो लेट्स नेम इट एज A एंड दिस इज B, ठीक है। सो अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं तो A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? A वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? रीजन? B ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है B में। अल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जब हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख रहे थे तो हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, और जब हम लोग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ही देखो, जैसे प्रोडक्ट 1 का जो हमारा इंटरमीडिएट है दैट इज मोर स्टेबल, राइट। सो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ यही ऐसा ही प्लॉट तो होगा इस तरीके से, है ना, कि KCP का जो आपका इंटरमीडिएट आया है वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू जो हमारा TCP आया था, ठीक है।
राइट, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका वो टीसीपी का ज़्यादा स्टेबल है और केसीपी का जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ये स्टेटमेंट लिखा है दैट कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका वो टीसीपी का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू केसीपी। और इन जनरल कंडीशन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर लें तो इंटरमीडिएट ऑफ केसीपी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू टीसीपी, राइट। फाइन, तो इसको हम लोग जो है इन अदर वेज हम लोग इसको 1-2 एडिशन भी बोल सकते हैं एंड 1-4 एडिशन भी बोल सकते हैं। सो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होने का ये मतलब है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन और द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट बनाने में जो है एडिशन इतना फास्ट हो रहा है कि इट इज़ नॉट इट डज नॉट हैव एनी टाइम टू रीअरेंज, राइट। लेकिन टीसीपी में एनर्जी जो है आपने दी है, हीटिंग कर रहे हैं, तो उस हीटिंग की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी रीच्ड, right? So ultimately every reaction is happening because of the temperature present in the surrounding. ठीक है, as a matter of fact, if temperature is 0 degrees Celsius, then the absolute temperature is still 273 Kelvin, right? So in that temperature also the reaction can happen, fine. But if you're talking about कि TCP और KCP में जो difference है वो क्या होगा? So normally every reaction will try to produce a product which is stable, right? So this reaction is going towards stability ultimately, right? So the more stable product is for the thermodynamically controlled product, but high amount of energy is required. That's why it was not giving you the TCP product or 1,4 addition at lower temperature, right? But as we heat the reaction container, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आराम से जो है वो आपका रीचेबल है, एंड दैट्स व्हाई द इंटरमीडिएट और अनस्टेबल इंटरमीडिएट और एज वी कैन से कि इन रेफरेंस टू द इंटरमीडिएट ऑफ द केसीपी, टीसीपी का जो इंटरमीडिएट है वो बन सकता है क्योंकि आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, सो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑलराइट। सो इसमें टीसीपी में जो भी चीज़ें होंगी वो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो द प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेबल, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम लोग केसीपी के बारे में बात करेंगे तो केसीपी में जो है आपका वो रेट और या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन से जो है वो ड्रिवन होगा, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में दोनों जो प्रोडक्ट आ रहा है वो डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सो अगर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट का बताइए, जैसे कि इफ वी आर यूजिंग ट्रांस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। सो इफ वी हैव टेकन अ ट्रांस एल्कीन, देन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर वी एज्यूमिंग? क्या ये मेजो कंपाउंड बनाएगा या फिर ये रासमिक मिक्सचर बनाएगा? इट विल फॉर्म अ मेजो कंपाउंड, राइट। सो ये जो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, जो जो कि हम लोग हाइड्रोजनेशन में देख रहे थे कि अगर सिन एडिशन होगा, ट्रांस में सिन क्या देता है आपका? मेजो देता है, लेकिन ट्रांस में अगर हम लोग एंटी एडिशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ट्रांसमिशन रासमिक मिक्सचर है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रांसमिशन रासमिक मिक्सचर, तो ट्रांस में एंटी आपका मीजो कंपाउंड बनाएगा, यस यस मीजो कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे तो फिर गलत दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर हम लोग सिस लेंगे तो इसमें रासमिक मिक्सचर आपका बन जाएगा। आई गेस कि ये उल्टा होना चाहिए,
ठीक है, सही है। So electrophilic addition of bromine on alkene is stereospecific. All right. So this is called known as stereospecificity. Uh, हाँ बिल्कुल समझाएंगे, देखो यहीं पे समझा देते हैं इसी में। अगर हम लोग एडिशन करते हैं इसका, तो ब्रोमीन का एडिशन कैसा होगा? अ, देखो आप एक बार मैकेनिज्म बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे एडिशन करेंगे। हाँ एंटी एडिशन होगा तो बना के देखो, वेज डैश बनाओ। बना। ये आया होगा प्रोडक्ट? नहीं। अब अगर मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा? फिशर में कन्वर्ट कैसे करते थे? ऊपर से देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब जो कार्बन आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका कैसा है? ये एंटी है या फिर एक्लिप्स्ड है? ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एंटी है ना, एंटी पोजीशन में है ना, तो इसको पहले एक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? CH3 और CH3 सेम साइड में चाहिए। तो ये बॉन्ड मैं रोटेट कर देता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, अब देखा जो बैक साइड वाला ब्रोमीन होगा, वो ब्रोमीन आपका जो है वो फ्रंट में आ जाएगा अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ मेसो स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों सेम साइड में है। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इन दोनों रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं एच और आई के, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि जो ये कंपाउंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कंपाउंड जो है आपका प्रोडक्ट में वो रासायनिक मिक्सचर दे दे कि ट्रांस में ब्रोमिनेशन कराएंगे तो रासायनिक मिक्सचर आएगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? सो इट इज प्रिफरिंग only one type of a product from a given stereochemistry of a reactant। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक stereochemistry of the reactant अगर आपके पास है, तो आपको एक स्पेसिफिक stereochemistry of the product मिल रहा है, that is known as the stereospecific nature of the reaction। ठीक है, तो stereospecific nature क्या होता है? stereospecific nature होता है कि एक given स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ रिएक्टेंट से आप एक गिवन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट ही बना पाओ, तब जाकर के उसे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन इज एन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, राइट? जे वाला बना के देखिए क्या बनेगा। जे हाँ, कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए जे में? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जे?
एक ही आएगा, दो आना चाहिए यार। कोई कायरल सेंटर नहीं आ रहा है क्या? बीच वाला आ रहा है ना? ये आपका कायरल सेंटर है तो नहीं, तो दो प्रोडक्ट आने चाहिए। तो दो प्रोडक्ट्स आने चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से तो। ठीक है, तो आपका जो भी है वो मिरर इमेज आ जाएगा उसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया आपका CH3CH BrCH3। और सेकेंड वाला क्या बनेगा HBr पेरोक्साइड में? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो CH2। हाँ, तो मैंने कहा बोला फंक्शनल आइसोमर, आपने आप ही बोल रहे हो फंक्शनल आइसोमर, तो वही तो मैं दिखा रहा था कैसे बनेगा फंक्शनल आइसोमर, कैसे हो गया फंक्शन। क्या बनना चाहिए बोलो? पोजिशनल आइसोमर्स बनना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 17। इसका देखो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं BD3 एंड THF। आई गेस कि ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा पहले डिस्कस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसा एडिशन था? देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक सिन एडिशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, बट इंस्टेड ऑफ BH3 वी आर यूजिंग BD3 और H2 OD यूज कर रहे हैं हम लोग, OD माइनस A। और किसी का कोई और आंसर? A सही है? ए है ना, राइट। सो नॉर्मली जो आपका ड्यूटेरियम और ओडी जो है दैट विल टेक प्लेस एज अ सिन एडिशन इन द एल्कीन, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं ये बताइए तो, इस रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या है? और THF और इसमें बताओ। नहीं, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड सॉल्वेंट नहीं है यार, पेरोक्साइड तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ना, D2O है ना। पेरोक्साइड तो एक तरीके से रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, राइट। कि जैसे हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखा था, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखा था, तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H2O2 का क्या रोल है, ये देखो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है आपके रिएक्शन को। ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट है दैट सॉल्वेंट इज D2O एंड D2O की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन में जो हाइड्रोजन्स हैं, एसिडिक हाइड्रोजन्स, वो भी जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ A ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन अगर हुआ तो फिर ये रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास एसिड है HA, इसको हम लोग एक्वस मीडियम में रख रहे हैं और एक्वस मीडियम में हम लोगों ने H2O लिया है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन आपका H प्लस प्लस A माइनस बना करके देगा। सिमिलरली अगर हम लोग यही काम D2O में करें तो ये आपका जो है ये H प्लस और A माइनस तो देगा, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा D2O का एंड इट विल गिव यू Da। ठीक है, तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following reagent convert propene to a racemic mixture? HBr peroxide या HBr? HBr। ठीक ठीक है, तो लगा देते हैं ब्रोमीन। ठीक है, तो ये रैस्मिक मिक्सचर दे रहा है। बोलो, ये कार्य सेंटर है बीच वाला। तो फिर क्या होगा आंसर? देखो ठीक से ध्यान से देखो क्या बनना चाहिए। Br2CCl4 आएगा, राइट। तो Br2CCl4 करेंगे तभी तो कार्य सेंटर बनेगा ना हमारे पास। ये आ गया आपका CH3CH Br CH2Br और ये आपका काइरल सेंटर, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका एक रासायनिक मिक्सचर जो है वो बनना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन सी, बिल्कुल। तो पी आपका कैसा एल्कीन आ रहा है? सिस आ रहा है, ट्रांस एल्कीन है, राइट। सो ट्रांस में अगर हम लोग एंटी एडिशन कराते हैं तो ये आपका मेसो कंपाउंड बनेगा, है ना। सब लोगों को क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर और भी है क्या कुछ क्वेश्चन, वो देखते हैं तो पहले। हाँ, और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
ऑप्शन बी होगा। और लोगों को क्या लगता है, बाकी लोग? ऑप्शन बी ना, ठीक है, सही आंसर। सो ऑप्शन बी में जैसे हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो दैट विल बी एन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, राइट। फिर अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो दैट विल बी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। एसिड कैटलाइज कराएंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, एंड दैट कार्बोकेटायन विल बी रीअरेंज्ड टू 3 डिग्री कार्बन, सो दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या ना। सो हमें पता है कि हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, माय बैड, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो दैट विल बी अ सिन एडिशन। सो फॉर दैट सिन एडिशन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, वो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकते क्योंकि आपका OH और H जो है वो एंटी एडिशन है। ये प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि आपका OH और H दे आर एडेड एट द सेम साइड। ये प्रोडक्ट जो है आपका नहीं बन सकता बिकॉज दिस इज Markovnikov of addition, but hydroboration oxidation is, it should be anti Markovnikov of addition. फोर्थ वाला जो है वो बन सकता है क्योंकि H और OH आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। और फिर जाकर के आपका अगर फिफ्थ देखेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपका सिर्फ 2 और 4 बन सकता है, दैट्स व्हाई 2 और 4 का जो है मिक्सचर होगा, बिकॉज 2 and 4 आर stereochemically related, right, and they are enantiomers of one another, and तो equal mixture बनेगा दोनों 50-50%। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डी लिख रहा है, और लोगों का कोई आंसर? डी आ रहा है सबका?
Sure. So clearly this is Markovnikov addition. ठीक है, Br and OH minus will be added. OH minus जो है वो उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. सो यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक हो रहा है और उसके बाद जो है हम टॉटोमर्स बना सकते हैं. ठीक है. तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ OH. ठीक है, ये इसका टॉटोमर ही है. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का, विच इज इन शॉर्ट as called as MC BPA, right? So which is metachloroperbenzoic acid. So clearly what it does is it oxidizes the alkenes और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है. So this is a peroxy compound, इसे peroxy linkage है, and this is going to give us a nascent oxygen, and that nascent oxygen is going to attack at this pi bond position, right? So ये आपको एक epoxide बना करके देगा. ठीक है. सो हाउ डज द एडिशन लुक्स लाइक. अगर हम लोग देखें तो ये एडिशन ये होता है सिन एडिशन. ठीक है, अगर हम लोग जैसे अगर सिस एल्कीन में एडिशन करा रहे हैं तो हमारे पास जो इपॉक्साइड मिलेगा वो इपॉक्साइड हमें इट विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग ट्रांस ले रहे हैं तो दैट ट्रांस विल बी एडेड इन द सेम साइड एंड दस देयर विल बी अ वेज एंड देयर विल बी अ डैश compounds in it, right? So normally अगर हम लोग MCBBA कराते हैं तो ये एक इपॉक्साइड बना करके देता है. अगर मान लो कि हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन MCBBA का, तो ये इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, कहाँ पे एडिशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, राइट? तो नॉर्मली जो हमें दिख रहा होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे एडिशन होगा. बिल्कुल. सो राइट. सो जहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है वहां पे आपका जो है वो एडिशन होगा आपका ऑक्सीजन का. कुछ ऐसा है इसका. तो इस एक तरीके से रिएक्शन की प्रॉपर्टी है. रिएक्शन की प्रॉपर्टी में जहाँ पे आपका लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाकर के ऐड हो रहा है. ठीक है. तो एक तरीके से मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोल सकते हैं इसको. फाइन. हालांकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है इसमें, कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, कार्बन आयन नहीं बन रहा. इसमें क्लियरली जो आपका मैकेनिज्म होगा दैट मैकेनिज्म विल फॉलो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोड्यूस अ नेसेंट ऑक्सीजन और वो नेसेंट ऑक्सीजन जाकर के यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होगा और वो जाकर के यहाँ पे लग जाएगा. ठीक है. तो इसका प्रोडक्ट बना करके देखिए. साइक्लोब्यूटाडाइन. हाँ, किसी एक पे भी जो है हम लोग इसको लगा सकते हैं. कहीं पे भी इधर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इसको किया जा सकता है. अब अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन में हम लोगों ने इसको एसिडिक मीडियम या स्लाइटली बेसिक मीडियम में भी रख सकते हैं. सो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में अगर हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से हाइड्रोजन प्रोटोनेट होगा. प्रोटोनेशन के बाद H2O के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बीइंग डेल्टा नेगेटिव, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन. सो इस अगर वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ अटैक होता है तो जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स ओपन हो जाएंगे और बॉन्ड्स ओपन होने के बाद जो है हमें एक एंटी एडिशन मिलेगा. ठीक है, OH का. सो दिस इज क्लियरली एन एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ठीक है, और ये आपको जो है एक विसिनल डायोल बना करके देंगे. इसको हम लोग कहते हैं विसिनल डायोल. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको वीक भी बोल सकते हैं. अगर एडजेसेंट कार्बन में OH लगा है या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी अगर ग्रुप लगा है तो उसको विसिनल बोलते हैं. जैसे अगर उसमें हैलाइड भी लग सकता है तो विसिनल हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है.
अगर मान लो कि यही काम हमें सिन एडिशन चाहिए, हमें सेम साइड चाहिए OH, तो हम क्या करें? ठीक है, तो ये इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट रिएक्शन है जिसमें OSO4 या फिर हम लोग KMnO4 लेकर के इसमें सिन एडिशन कराते हैं। तो दिस इज सिन एडिशन, राइट। इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा फॉलो हो रहा होगा, हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड से OSO4 या फिर KMnO4 भी कुछ इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में जो है एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो मिक्स होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स होने के बाद ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो है हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हम KMnO4 के साथ भी करा सकते हैं। देखो कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसके बेसिस पे। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ट्रांस में OSO4 करवाया है, तो ये कैसा प्रोडक्ट देगा? ट्रांस में सिन रासायनिक मिक्सचर देगा। ट्रांस में सिन रासायनिक मिक्सचर देता था क्या? हाँ, रासायनिक मिक्सचर। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, अमेजो नहीं होना चाहिए, बहुत टाइप हो रहा है यार इसमें। और अगर हम लोग ट्रांस में सिन कराएं तो ये आपका मेसो कंपाउंड। यहाँ पे भी गलत होगा आई गेस, टाइपो में। हाँ, यहाँ पे भी गलत। नेक्स्ट वाला करके देखिए। तो इसका प्रोडक्ट जो है आपका ये वाला आएगा। ठीक है, दोनों OH सेम साइड में। नेक्स्ट वाला करके देखिए। OH सेम साइड में आ जाएगा, इसमें भी वही है। ठीक है, KMnO4 के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ पे भी सेम साइड में आ जाएगा, राइट। इसका बना करके देखिए, OSO4 H2O2।
इपॉक्साइड OSO4H2O2 ले रहे हैं। वही है बस, नॉर्मली हम लोग जो है OSO4 दिखा रहे हैं और H2O2 दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपका वही सेम एडिशन हो जाएगा, जो OH है और वो OH है उसका सेम साइड से एडिशन, ठीक है। सो H2O2 यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ H2O2 इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, जो कि फाइनली जो हम लोगों ने लास्ट स्टेप देखा था OSO4 का, जब आपका एक रिंग बनता है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं, ठीक है, वो H2O2 के प्रेजेंस में वो रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट, जो कि हम लोग नॉर्मली दिखाते नहीं है OSO4 में, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विच इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम लोग ओजोन यूज कर रहे हैं एंड CH2Cl2 यूज कर रहे हैं। CH2Cl2 इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एंड वी आर आल्सो यूजिंग Me2S which is dimethyl sulfide, so which is also known as DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। सो इसमें नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो ओजोन की प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन्स लग जाएंगे इन पाई बॉन्ड्स में। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए, ऑक्सीजन का ये एक O3 का या ओजोन का ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O- आपका यहाँ अटैक करेगा और एक जो अटैक होगा वो आपका यहाँ होगा, ठीक है। सो इसका अगर हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लियरली यहाँ हो क्या रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, फाइन। तो एक पॉजिटिव एंड भी है हमारे पास और एक नेगेटिव एंड भी है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर ये जाकर के एक आपको एक रिंग बनाएगा विच इज क्वाइट अनस्टेबल रिंग, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो है वी हैव टू परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। तो कभी भी ऑक्सीजन अगर है परऑक्सी लिंकेज में तो दैट इज एन अनस्टेबल सिस्टम एंड दैट विल ट्राई टू ब्रेक इट्स परऑक्सी लिंकेज, राइट। सो आफ्टर ब्रेकिंग टूटेगा और टूटने के बाद जो है आपका ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपके कुछ इंटरमीडिएट्स कुछ ऐसे बनेंगे। एक तो आपका जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इन पोजीशंस पे, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो कुछ ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड है, और यहाँ पे भी अगर हम कीटोन या एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी एक डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। सो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड जो है आपका वो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा और ये जो नेगेटिव एंड है आपका वो इस पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रीअरेंज करके इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो रीअरेंज करके कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। तो ऑक्सीजन माइनस ने कार्बन पे अटैक किया और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक कर लिया और इसके बाद फिर एक रिंग बन गया। इस रिंग में आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमारे पास एक परऑक्सी लिंकेज है, इनिशियली हमारे पास दो परऑक्सी लिंकेज था, ठीक है। तो इस बार फिर से एक बार और ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद इट विल प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक हो रहा है ऐसे, और ये आपका जो है आपका नेसेंट ऑक्सीजन इसने प्रोड्यूस कर दिया, राइट। ये अभी अगर आप ध्यान दो तो ये बस रिएजेंट वन से ही काम चल रहा है हमारा, ठीक है। ये रिएजेंट वन से ही काम चल रहा है, रिएजेंट टू का अभी यूज आया नहीं है। रिएजेंट टू का यूज अभी आएगा जब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तब जा करके आपका इसमें Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड जा करके आपका Me2SO प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विच इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड विच इज DMSO।
ये काम हम लोग जिंक के साथ भी कर सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, और ZnH2O के साथ भी कर सकते हैं, और ZnH2O2 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस मैं बताऊंगा क्या होता है। इसमें पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। इस ब्रेक होने के बाद, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्सिल लिंकेज ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया, विच इज सिंपली एज दैट कि आप अगर इस डबल पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए और ऑक्सीजन लगाइए, दैट्स द इशू, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे O3 और जिंक यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जिंक का भी यही काम है, जिंक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ZnO बना लेगा, एंड दैट ऑक्सीजन विल नॉट बी इन यूज। ठीक है, अगर हम लोग जिंक यूज नहीं करते हैं, इसके अलावा जिंक या फिर Me2S के अलावा कुछ और यूज करते हैं, जैसे H2O2 यूज कर लेते हैं, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे आता है। देखो, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है, अगर हमने इसमें O3 और H2O2 ले लिया, सो देर इज नो सच थिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड इन दिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, आपके पास जिंक नहीं है या Me2S नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल, तो जहां जहां पे भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है इसने, पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे देखिए कुछ प्रोडक्ट्स बना करके देखते हैं, अगर इसका फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बनाते हैं तो बना के देखो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट क्या आएगा। मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपका एक कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा, नहीं। ठीक है, सेकंड वाले का देखिए, दोनों एल्डिहाइड बनेगा। बस वही करना है आपको, ब्रेक करना है और ऑक्सीजन लगा देना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए और ऑक्सीजन लगा दीजिए, और कोई चेंज नहीं। और यहाँ पे तो आपका जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इसका अब देखिए बना करके, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन बनना चाहिए। हाँ, एक ही कंपाउंड होगा, दो कीटो ग्रुप ही, तो ये यहाँ से जो है ब्रेक होगा और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बना के देखो। नेक्स्ट में हम लोग H2O2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हो आप अनस्टेबल कंपाउंड की स्टेबिलिटी आप कैसे देख रहे हो। तो चेन चेन हो जाएगा और क्या, बल खुल जाएगा रिंग। ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में ही। और वन मोर थिंग इज कि स्टेबिलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज समथिंग लाइक कि हम किसी को कंपेयर करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन भाई किससे, किससे ज्यादा ताकतवर। सो स्टेबिलिटी इज अ रेफरेंस क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो स्टेबिलिटी जब भी करते हैं हम तो कंपेयर करते हैं, बताते नहीं है कि दिस इज अन स्टेबल कंपाउंड, दिस इज अ नॉन स्टेबल कंपाउंड। अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट आ रहा है तो वो किसी के कंपैरिजन के टर्म्स में आ रहा है कि इसके कंपैरिजन में इस जो है
एक स्टेबल कंपाउंड है। जैसे अब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, तो साइक्लोप्रोपेन को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि दिस इज अनस्टेबल, राइट। तो किसके किसके रिस्पेक्ट में, और अदर रिंग्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी यही कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वाले का बनाइए। एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, H2O2 यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल, तो ये एक रिंग आएगा ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ अगर जिंक होता तो हाइड्रोजन आता। अब क्योंकि अब यहाँ जिंक है नहीं, तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, OH, ठीक है। और यहाँ से फिर कनेक्टेड 5 मेंबर रिंग, और ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाला करके देखिए। किसी भी एक साइड, तो नॉर्मली ऐसा भी है कि अगर हम लोग ओजोनलाइसिस कर रहे हैं तो जितने भी आपको पाई बॉन्ड्स दिखे सबको तोड़ दो, जितना भी दिख रहा है, एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो दोनों ब्रेक करो, दोनों ब्रेक किया तो ये आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे H2O2 यूज कर रहे हैं, तो जहां जहां पे भी हाइड्रोजन है वहां OH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं। सो अगर हम लोग ऐसे रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएं तो क्या होगा फिर? क्या बनना चाहिए? हाँ वही तो, तीनों के तीनों जो है वो आपके ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ये प्रोडक्ट होगा, सी डबल H, ठीक है। इसका तीन, इसके 3 मोल्स मिलेंगे आपको, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट ये वाला देखिए। हो गया या नहीं हुआ? तो यहाँ पे भी वही कर रहे थे, जो जितने बॉन्ड्स है उनको तोड़ो, और
ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, फिर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। H2O2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ H है उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। नेक्स्ट वाले का देखो, अगर अल्काइन में अगर हम लोग करा रहे हैं तो क्या होगा, ओजोनोलाइसिस। अच्छा, वो तो ठीक है, मतलब लेकिन प्रोडक्ट बना है क्या, प्रोडक्ट? चलो कोई बात नहीं, बना हो चाहे नहीं बना हो, इट्स द मैटर इज समथिंग एल्स। यहाँ पे आप ये देखो कि कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम लोग एल्कीन के, एट अ टाइम कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। ये दो बॉन्ड, ठीक है। तो अगर तीन बॉन्ड आ गया, तो तीन बॉन्ड आ गया तो क्या करें, दो दो ही बॉन्ड ब्रेक होगा, तीन तो नहीं होगा ब्रेक। तो यहाँ पे भी जो है आपको दो बॉन्ड वो ब्रेक कर दो, और दो बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वो H2O2 यूज किया है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये। ठीक है, क्लियरली, क्योंकि ओजोन लाइसिस जो है आपको वो दो दो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, राइट। नॉर्मली दिस इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट वाला। क्या क्या बन रहा है, एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है क्या? तो क्या होगा प्रोडक्ट इसमें, इसमें भी पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या होना चाहिए।
और किसी का ये आ रहा है? देखो चेक करके देखो, ए आ रहा है कि नहीं? सी आ रहा है, अच्छा। दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। देखो दोनों, देखो ध्यान से देखो क्या है, ए है कि बी है। चलो मैं भी देखता हूँ आंसर में क्या है। इसमें तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सीधा यही कर रहे हैं ना कि ब्रेक कर देते हैं। तो ये आपका जो कार्बन है वो यही कार्बन है, राइट, ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये वाला। तो अब इसमें अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट है। सही बनाया है ना? देख लो, देख लेना एक बार, ठीक है, कोई गलती हो तो बताना। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो CHO आ रहा है और एक यहाँ पे CHO आ रहा है, नहीं, तो 2 CHO आना चाहिए और एक कीटोन आना चाहिए। तो यहाँ तो एक CHO है और 2 कीटोन है, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता। बी में देखते हैं, बी में आपका ये कीटोन आ रहा है और 2 CHO आ रहा है। सही क्या है ना? नहीं यार, गलत, कहीं कुछ तो गलत है। क्या गलती है? ये गलत है। यहाँ सीधा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा ना। ठीक है, अब सही है, सही है। तो देखो, यहाँ सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ओ अच्छा, हाँ ठीक है। तो हाँ, इसी कंपाउंड से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई आपके पास एक कीटोन आ गया और 2 कीटोन है और एक CHO है, तो 2 कीटोन यहाँ पे भी है और CHO है। लेकिन फिर अब हम जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि भाई अगर आप एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दे करके वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, 3 4 5 6 7 कार्बन होने चाहिए एल्डिहाइड से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपका जो थर्ड पोजीशन में है वहाँ पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बी वाला सही आ रहा है इसमें, राइट। अगर ये सी और डी में चेक करना है तो चेक भी कर ले सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो गलत है, यहाँ पे 2 OH दिख रहा है। और यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली अगर आपके पास आता है क्वेश्चन तो आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने से जो है आपको चेन में पता चलेगा कि कौन सा पोजीशन कहाँ पे रहता है। एक कोई रेफरेंस मान लो अपने हिसाब से, एल्डिहाइड जैसे मैंने माना, आप कीटोन भी मान करके कर सकते थे, वहां से भी हो सकता था, फाइन।
सो इसी तरीके से आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 24 25 ट्राई कीजिएगा और साथ में एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, ये भी आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कोई मैथ्स का कॉलम है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 और 27 तो आप एक बार देखना, सॉल्व करके एक बार देखना, नहीं होता तो फिर मैं बताऊँ, ठीक है। बाकी स्कूल्स में क्या चल रहा है आप लोगों का अभी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल, अभी और मतलब ऑर्गेनिक अभी हुआ नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, हम लोगों का जो है कंप्लीट हो रहा है, पैरेलली आप लोगों का फिजिकल चल रहा है और यहाँ पे जो है पैरेलली आप लोगों का ऑर्गेनिक चल रहा है, ठीक है। सो एल्कीन में अभी ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर है तो नेक्स्ट लेक्चर में आई वुड सपोज कि मैं रैप अप कर दूंगा एल्कीन्स, और एल्काइंस में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर अल्काइन स्टार्ट होता है तो फिर विल स्टार्टिंग विद अल्काइन। अल्काइन के बाद हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना घर पे, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।